की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 15, ठीक है। एंड this means volume of nucleus is very small compared to volume of atom. That means most of the space inside the atom is empty. Is it okay? Most of the space inside the atom is empty. ठीक है, पहले लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से क्लेम कर रहे थे, यहाँ ये पॉइंट आने के बाद यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट होने के बाद we can quantitatively ascertain this particular fact, ठीक है। and therefore वो 1/20,000 का जो रेशियो आ रहा था, only one alpha particle out of 20,000 is going to rebound, that was very well explained, ठीक है। that is not something which is not going to be explained. In fact, it got very well explained with this sort of calculations, ठीक है। This was a small thing. ये basically ये ratios जो थे दोनों, ये आप लोग को सिर्फ हाईलाइट करने हैं जो वहाँ पे रह गया, ठीक है। Next thing in our study is Rutherford model of atom, ठीक है। और planetary model, हाँ बोलो ना। Sir, the radius of the atom it changes, no? मतलब across the periodic table, so the radius हाँ of the हाँ, nucleus also changes. नहीं, radius of nucleus is also going to change, ठीक है। सारे एटम का न्यूक्लियस एक ही साइज का होगा ऐसा थोड़ी हमने बोला है, हमने तो सिर्फ ये बोला कि उनकी डेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, राइट। वी हैवंट सेड दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस विल बी सेम। साइज ऑफ न्यूक्लियस तो वैरी कर ही रहा है ना, इट इज वेरिंग एज पर 1.3 into 10 to the power minus 15 into a raised to the power 1/3। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा radius is also increasing, radius of nucleus is also increasing, isn't it? Yes, sir. और दूसरी चीज, बट ये इंक्रीज जो होगा, these increase are going to be very minute, और वहां पर periodic table में भी जो लेफ्ट से राइट या टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, that increase is again very minute, ठीक है। एक second, the next one is planetary model of atom, या रदरफोर्ड मॉडल भी इसको बोलते हैं। What he proposed is electrons revolve around nucleus in circular two-dimensional circular orbits, ठीक है।
in the free space around nucleus. Free space around nucleus. ठीक है. दूसरी चीज इस ऑर्बिट का उसने कुछ नाम वाम अलग से दिया नहीं था, वो अलग से नाम जो है वो बोर्ड्स आकर के देगा. However, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था ना n वैल्यू, उसका आइडिया इसने दिया था. He has told that there can be or there will be multiple orbits to accommodate electrons. एक सेकंड रुक जाओ, सेकंड वाला पॉइंट अभी मत लिखना, फर्स्ट वाले में कुछ चीजें और रह गई. सेकंड वाला लिखेंगे, यही सेम चीज लिखेंगे, बट पहले वाले को पहले लाइक प्लेनेटरी वर्ड जो आया था उसने बेसिकली डायरेक्ट रेलेवेंस लिया था, और वो थ्योरी के अंदर भी लिखा हुआ है, लाइक planets revolve around planets revolve around sun, revolve around sun in solar system. So he drew his comparison to solar system, but obvious conclusion he took, very obvious conclusion he took, or very obvious comparison he took by comparing this thing, the electrons revolving around nucleus, with a solar system. There will be multiple orbits of different sizes to accommodate many electrons or multiple electrons. In fact, the naming of the orbits KLMN was given by him only. ठीक है. He named these orbits in orbits as per their proximity to nucleus. First orbit को एक बार first orbit की shell और की orbit second orbit L cell और orbit थर्ड वाले को M ठीक है.
और इसने तीसरी चीज ये बोली, ये रिवॉल्व क्यों कर पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व करता रहता है. सो इट इज centrifugal force between electron and nucleus, या फिर yeah, which keeps electron rotating in its orbit. ठीक है. The attractive force between nucleus and electron is the source of centripetal force required for circular motion of electron around nucleus. ठीक है. So ये प्राइमरी, ये दो तीन propositions थे. Now ये दो तीन propositions very soon started getting some objections from the various scientists pertaining to some of the new developments which has happened in the field of this quantum physics. ठीक है. Some newer developments which has taken place in the field of quantum physics as well as in the field of electrodynamics, electricity and magnetism, और together electromagnetism, उसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए थे जिसके बाद ये जो प्रोपोजिशन था रदरफोर्ड का, that fall apart. ठीक है. However, it has some merits. This model has some merits. The merit of this model was merits of the model. The first merit is this was first dynamic model. Dynamic model of an atom from which expulsion of electron is not a very uh, is not a very difficult task. ठीक है. So secondly, the expulsion is not a very difficult task. इसकी वजह से conductivity to a small level was being explained. ठीक है. Not fully, but conductivity at low potentials can also be explained. ठीक है. तो इसी में हम लिख सकते हैं helped in explaining conductivity metals at
reactions as well. ठीक है। और दूसरा चीज the chemical reactions chemical reaction between atoms via exchange sorry, exchange via transfer of electrons can be conveniently explained. ठीक है. It can be conveniently explained but not fully explained. Are we getting this point? It can be conveniently explained but अब ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर भी कर सकते थे बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी नहीं हो सकता था इसके थ्रू. That is going to be the demerit of this model. So दो major merits जो थे वो ये थे. Then comes the demerit. Demerit of the model is going to be large enough. However, we are going to just demerit is going to be large. We are just going to concentrate on few of them. Okay. The first demerit of this model was, or the biggest demerit you can see, was as pointed by Bohr, that led to the failure of this model. The complete failure of this model was a new development which has taken in physics. Okay. Maxwell's theory. Maxwell's theory of electromagnetic radiations. Electromagnetic inductions भी बोल सकते हैं, radiations. ठीक है. This theory states that इस theory में ये बोला गया है if you have a changing magnetic field, ठीक है, if you have changing magnetic field, the theory says that changing magnetic field magnetic field and changing electric field interferes or interacts
radiate energy in form of electromagnetic waves. ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज करना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं रहना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है और दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चेंज हो रहा है, सॉरी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दोनों ही जब चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों ही फील्ड्स चेंज कर रहे हैं और इन दोनों का इंटरेक्शन जहां भी होगा वहां पर the next thing which will happen is these two interactions will start radiating energy in the form of electromagnetic wave such as light. Light is an example of electromagnetic wave. तो लाइट के तरह ही कुछ रेडिएशन निकलने लगेगा वहां से एंड द एनर्जी विल स्टार्ट रेडिएटिंग। अब कहीं से भी एनर्जी निकलेगा तो जहां से वो एनर्जी निकल रहा है उसकी एनर्जी खुद की कम होगी, राइट। जहां कहीं से भी एनर्जी निकल रहा है उस पर्टिकुलर जगह की या उस पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी तो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाएगी। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बात समझ में आ रही है? कहीं से भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही है, तो जहां से निकल रही है वहां से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। दैट्स अ प्रीटी लॉजिकल थिंग। अब सन से एनर्जी निकल रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो सन का भी एनर्जी कंटेंट कम हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सन का एनर्जी कंटेंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। तभी ऐसा बोला जाता है कि some millions and billions of years ahead, sun will completely, I mean, it will die down, right? It will not be as it is today, right? ऐसी theories वगैरह हमने पढ़ी, मतलब ऐसे propositions हमने पढ़ रखे हैं, and there is merit to that proposition. There is no doubt about it. A time will come when sun will not remain sun. Yeah, it will become नो सुपरनोवा नहीं बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बन के रह जाएगा। इट विल एंड अप एज व्हाइट ड्वार्फ, नॉट सुपरनोवा। व्हाइट ड्वार्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस होता है, सुपरनोविक फेज में जाता है, फिर ब्लैक होल बन जाता है। सुपरनोवा फेज में नहीं जाएगा, इट विल रिमेन व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। ओके, और सुपरनोवा ब्लैक होल का वो लास्ट स्टेज होता है। सुपरनोवा में फिर से एक्सप्लोजन होता है एंड थिंग्स स्टार्ट गोइंग फार। ओके, और एनीवे वो उनके लाइफ साइकिल पढ़ने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। वहां से हमको सिर्फ ये लेना था कि कहीं से भी अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है या एनर्जी निकल रही है तो वी हैव इट हैज टू, आई मीन, जिस जगह से वो एनर्जी निकल रही है वहां का एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग। नाउ आई विल ट्राई टू पुट और हाउ Bohr put it in atomic model is what I'm going to explain you guys. एक second. Okay, so how Bohr put it is, see, we have an atom. रदरफोर्ड ने बोला एटम है, मैंने मान लिया एटम है। एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है,
न्यूक्लियस ही मान लिया मैंने. प्रॉब्लम ही सेड इज न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज और इसके राउंड अबाउट हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो टहल रहा है. ठीक है. ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ड्यू टू विच देयर इज अ सेंट्री, मतलब ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वेयर v इज फिक्स्ड वैल्यू, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेलरेशन कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, या एक्सेलरेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ v स्क्वायर बाय r. centripetal acceleration, there is a acceleration in this electron which can be given by v square by r, where r is the radius. Is it okay? The electron revolving in a fixed orbit around the nucleus with a fixed speed, even with fixed speed, is going to have an acceleration, and that acceleration is v square by r. ठीक है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर सीधे चल रहा है, मतलब सीधे फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो दैट विल लीड टू अ करंट. इलेक्ट्रॉन को अगर फिक्स्ड स्पीड से मूव कराते हैं तो दैट विल लीड टू अ करंट, राइट, अ कांस्टेंट करंट. इज इट ओके? किसी भी जगह से अगर सिर्फ एक, मतलब एक चार्ज या स्ट्रीम ऑफ चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, then we are going to have constant current. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है? चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो there is going to be a constant current. करंट क्या होता है? What is current? Q by T. बिल्कुल, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट Charge. टाइम. yes, हाँ सॉरी, Flow of- ट्रांसफर ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट. तो यहाँ पर अगर सेम स्पीड से सारे ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहे हैं, तो किसी भी जगह पे, जैसे इस जगह की बात करें तो इस जगह से किसी भी एक सेकेंड में पास करने वाले चार्ज का काउंट जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, एंड देयरफॉर करंट इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है. अब अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सिलरेट कर रहा हो, ठीक है, एक्सिलरेट करेगा तो क्या होगा? द वेलोसिटी विल नो मोर बी सेम, एंड चूंकि वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू दिस सेम एरिया at different times will not be same. Are we getting this point? If the charge particle is accelerating,
then at different instance, the number of charge particle crossing a particular unit area will be different, or at least will not be same. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ कि एक्सिलरेटिंग चार्ज अगर रहेगा हमारे पास, तो हमारे पास चेंजिंग करंट रहेगा। नॉन एक्सिलरेटिंग चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला चार्ज अगर मेरे पास है तो सिर्फ करंट इंट्रोड्यूस होगा, और एक्सिलरेटिंग चार्ज अगर रहेगा तो चेंजिंग करंट रहेगा, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो at different instance of time, therefore there will be a changing current. Making sense? सर तो वो कभी होता है क्या चीज? जब भी कांस्टेंट होता है और कभी चेंजिंग होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? अरे बता तो रहा हूँ, अगर फिक्स्ड स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट करंट बनेगा, और सर वो एक्सिलरेटिंग, समझा, लेकिन हाँ सर वो फिक्स स्पीड पे कभी जाएगा और एक्सेलरेट कब करेगा अरे वैसा? वो कब जाएगा वो तुमको थोड़ी सोचना है, वो तो बाद में सोचना है, फिजिक्स 12th में पढ़ोगे तब। और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें 12th में पढ़ोगे। Okay, that is not a concern. I'm just letting you guys know one very small thing. वो क्या है? See, अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है ना? बट उसके बगैर पता हुए, आई मीन बेसिक्स का बगैर पता हुए, या ऐसे बोलो कि उन एप्लीकेशंस का बिना पता रहे हम लोग अगले थियरी के ऊपर जा नहीं सकते। That's our what should I say, limitation. ठीक है? तो अब मुझे सिंपलेस्ट वे में उसको बताना पड़ेगा आप लोगों को। अब कब वो एक्सिलरेट करेगा और कब नॉन एक्सिलरेटिंग रहेगा, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा फील्ड, जिस फील्ड में या जिस टाइप ऑफ फील्ड में वो मूव कर रहा है। मतलब उसको धक्का देने वाला पीछे से जो फोर्स होगा, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि ये फिक्स्ड स्पीड से मूव करेगा या फिर चेंजिंग स्पीड से मूव करेगा, राइट? फिक्स्ड स्पीड से कब मूव करेगा? जब एक बार उसको धक्का दे करके और छोड़ दिया गया, ठीक है? दैट इज व्हाट न्यूटन सेज। एक बार किसी चीज को मोशन में ला करके आपने छोड़ दिया तो वो बस जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाता रहेगा, राइट? तो वो कंडीशन जब मेट होएगा तो इट विल कीप ऑन गोइंग एट सेम स्पीड। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर उस पे कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होते रहेगा। ठीक है अथर्वदेव पांडे? हाँ सर। तुम्हारा डाउट यही था ना कि कब होगा, तो उसको, हाँ सर। और लाइक दैट इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी ओपन मैनर, ठीक है? अब सिस्टम स्पेसिफिक मैनर कहाँ पे, किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हो तुम? जब हम सिस्टम्स में डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन मे गेट चेंज, बट इन जनरल दिस इज द वे इन विच आई कैन एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम और योर डाउट, राइट? मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हो गया था, मुझे लगा इसके कॉन्टेक्स्ट में तुम पूछ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होएगी थोड़ी सी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल एज दिस, एज सिंपल एज द वे आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है? अब ये लीनियर मोशन वाला सर्कुलर मोशन में आता है तो उसमें भी थोड़ा सा पंगा होता है, ठीक है? बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। हम ये क्लियर हो गए कि charge moving with constant speed, अगले पेज पर लिख लेते हैं।
charge moving with an acceleration is source of time varying current. ठीक है, अब ये टाइम वैरिंग करंट क्या करते हैं, टाइम वैरिंग करंट की वजह से अगर कहीं भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है. Am I right? Yeah, sir. Corkscrew law. Right. कौन सा लॉ? Corkscrew law. Corkscrew law. हाँ sir. Cork is what? सर वो कोई तो Flame. साइंटिस्ट था Fleming's था ना? हाँ नहीं हाँ सर हाँ फ्लेमिंग्स है सर. Fleming's सर उसके जैसा ही था मैक्सवेल. नहीं, सर मैक्सवेल ने उसमें अलग से कुछ नहीं किया था, मतलब अलग से एक रूल अपना डाला था और बाकी रूल्स जो थे ना वो फ्लेमिंग के और लॉरेंज के और एक और साइंटिस्ट था, फैराडे. फ्लेमिंग, फैराडे, लेंज, हाँ, इन तीनों के एक एक लॉज को लेकर के, और आखिरी लॉ जो था ना वो इसका था, ठीक है, मैक्सवेल का. जैसे डाल्टन ने अपने से पहले के सारे लोगों के आइडियाज को क्लब करके एंड डाल्टन अपना एक मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ अपना ऐड किया और डाल्टन थ्योरी बना दिया, ठीक है ना. उसी तरीके से मैक्सवेल ने भी पहले के जो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी काम किया हुआ था, फैराडे ने कुछ काम किया हुआ था तो उसका एक लॉ था, लेंज ने एक काम किया था तो लेंज का एक लॉ था, और गॉस ने कुछ काम किया हुआ था, गॉस का कुछ लॉ था. फ्लेमिंग का नहीं था एक्चुअली, फैराडे का ही था. फैराडे, लेंज और गॉस ये तीनों के लॉज थे. इन तीनों के लॉज के साथ साथ अपना एक लॉ ऐड करके एंड ही पब्लिश द सेट ऑफ 4 लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है. एंड यहाँ पे जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो फेलियर का कारण बना, उसमें वो जो फोर्थ अपना इंड्यूस किया था ना सेट ऑफ लॉज में, दैट वाज द रीजन फॉर फेलियर, ये इसी ने बोला था. अब यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि करंट जो है वो अपने साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है. कोई भी करंट जो है, if there is some current, there will be some magnetic field associated with it. That was a proposition given by Lenz law. We will study about it in physics, no worries. So current carrying wire, current or we can say flow of current is source of magnetic field, ठीक है. अब यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कांस्टेंट करंट अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो will lead to constant magnetic field, right? और अगर चेंजिंग करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, चेंजिंग करंट और टाइम वैरिंग करंट, टाइम वैरिंग करंट. What do you think? What will happen? अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो ये होता है इक्वेशन, B vector is equal to mu naught by 4 pi I by 2I by R.
कि ये अगर करंट है तो इसके आजू बाजू में एट अ डिस्टेंस आर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी गिवन लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करंट इंक्रीज करेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। क्या क्या, सॉरी? सर करंट इंक्रीज करे तो वो भी इंक्रीज होगा। राइट, सो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा हो, बट टाइम वैरिंग है। मुझे ये पता है कि करंट जो है वो फिक्स नहीं है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो अगर करंट टाइम वैरिंग है तो मेरा फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंजिंग रहेगा, टाइम वैरिंग रहेगा, राइट? इसका जैसा नेचर होगा वैसा ही इसका भी नेचर हो जाएगा। ये वाली चीज जो होती है जैसे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, कांस्टेंट 9 into 10 to the power minus 9, सॉरी 9, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है दिस इज 10 to the power minus 7, और ये दोनों भाई भाई होते हैं। ठीक है ये दोनों भाई मिल करके स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन करते हैं, म्यू नॉट बाई हाँ एप्सिलॉन। सर, हाँ सर टाइम कांस्टेंट नो। टाइम कांस्टेंट। हाँ, सो एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और दूसरे को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी। हाँ, तो बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ, जस्ट बता दिया आपको। और ओवर हियर आई एम मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट कि जस्ट टू गेट यू एन आइडिया और ग्लिम्स कि टाइम वैरिंग करंट फ्लो विल लीड टू टाइम वैरिंग सर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बोलिए ना। So what was the value of mu naught upon 4 pi 10 to the power minus 1 or 7? 10 to the power minus 7। एक्चुअली b into IDL एक और कर लेते हैं ना, तो जस्ट b into IDL this will become equal to force न्यूटन। इसका यूनिट वगैरह अगर निकालना है हम लोगों को, we can find out from here। v के लिए होता है टेस्ला, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, that will be mu naught by 4 pi या mu naught का यूनिट। ठीक है, सर आइडियल मतलब? आइडियल कहाँ लिखा है? सर आइडियल IDL करंट इनटू लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर होता है, इट्स अ साइक्लिक थिंग, इट्स एक्चुअली अ साइक्लिक थिंग। ठीक है ना, जो टेक प्लेस करता है, देखो मूविंग चार्ज से कांस्टेंट करंट, एक्सेलरेटिंग चार्ज से वैरिंग करंट, टाइम वैरिंग करंट, कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वैरिंग करंट से टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज से टाइम वैरिंग करंट एंड टाइम वैरिंग करंट से टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और फेनोमेना मजेदार होता है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ मोटर, सॉरी जनरेटर्स। यस सर। जनरेटर के बारे में सुना हम लोगों ने, जनरेटर क्या काम करता है? yes It converts mechanical energy into mechanical electrical energy to energy electrical energy कैसे? by inducing current magnet after rotating of a coil in the circuit. रोटेटिंग ऑफ कॉइल In the magnetic field, which results in induced induction of इंडक्शन ऑफ current in the circuit. बस 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 तो वहां पर होता क्या है कि कॉइल को हम रोटेट करते हैं, हमारा इस तरह का कॉइल होता है,
जिसको हम रोटेट करते हैं, राइट। और फील्ड जो होता है, मैग्नेट के थ्रू जो फील्ड हम क्रिएट करते हैं वो फिक्स रहता है। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम कॉइल को रोटेट ना करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें, ठीक है, तब भी करंट प्रोड्यूस होगा। जनरेटर में क्या प्रिंसिपल रहता है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट को फिक्स रखना है हमने, कॉइल को मूव कर रहे हैं। अगर कॉइल को फिक्स रख दें और मैग्नेट को मूव करें, तब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, वहां पर क्या होता है, कॉइल मूव कर रहा होता है, मैग्नेट फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो गई या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ठीक है ना। दूसरा सिनेरियो, मैग्नेट अगर मूव कर रहा है और कॉइल अपने फिक्स्ड पोजीशन पर फिक्स्ड है, तब भी सेम फिनोमेना होता है, एंड यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड गेटिंग इंड्यूस्ड। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अगर कहीं पर भी हमारे पास एक कॉइल है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अच्छा देखिए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहीं पर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। जैसे इंडक्शन के टाइम पर हम उसको यूटिलाइज करते हैं और कॉइल के थ्रू बाहर लेकर के आ जाते हैं, जिसको हम बाद में फिर अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर कॉइल को नहीं रखेंगे यहाँ पर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करेंगे, फील्ड को मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, होगा, बट देयर वोंट बी एनी डिवाइस टू कैप्चर इट, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। बट चेंजिंग, सो माय पॉइंट इज वेरी लिमिटेड कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से अब क्या मिलने वाला है हमको, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, ठीक है। सो द साइकिल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से टाइम वेरिंग करंट आया, टाइम वेरिंग करंट की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया, ठीक है। द मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, presence of varying magnetic field and varying electric field leads to radiation of energy from the electron nucleus system, thus energy of system So this all is part of the Maxwell's theory. हाँ, मैक्सवेल्स थ्योरी नहीं यहाँ पर खत्म हो गया। अब नाउ आई एम बैक टू द Sir, so we were talking about demerits. So the demerit
क्या था अरे डिमेरिट में आ रहा हूँ ना, ठहर जाना 2 मिनट, मैं वही समझा सर रहा तो हूँ। वो डिमेरिट नहीं था मैक्सवेल का थियरी। अरे मैक्सवेल के थियरी के बेसिस पर ही डिमेरिट को समझाया जा सकते हैं ना, तो अभी समझा रहे हैं, 2 मिनट दो तो सही। अब फाइनल लाइन में लिखने वाला हूँ तो तुमने मुझे रोक दिया बीच में, ठीक है? 2 सॉरी मिनट सर। दो। In next 2 lines, it will become clear to you. Presence of varying electric field leads to radiation of energy from electron nuclear system. इस स्टेटमेंट या इस पॉइंट तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? दैट इज की थिंग। यहाँ तक की चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम इसके लेफ्ट साइड तक? सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर सिस्टम मतलब सारा कंबाइन करके ना? हाँ, therefore electron start moving closer to न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्लोजर क्यों आएगा न्यूक्लियस को? एनर्जी रिड्यूस हो रही है, सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो रही है। अब वो एनर्जी जो रिड्यूस हुआ वो कंपनसेट कैसे करी जा रही है? दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू नो। देखिए, सी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, प्लस चार्ज, ये सर्कुलर नहीं बना, कोई बात नहीं। सो हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये प्रोटॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की एनर्जी अगर मुझे देनी होगी तो कैसे देंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, this can be considered as Q1, this can be considered as Q2 या capital Q. So Q into capital या Q1 या सिर्फ simply Q बोलने इसको, Q into capital Q divided by R, right? Is this okay? Second thing is, the charge on electron is going to be negative, charge on nucleus is going to be positive. So एंड इनकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फिक्स है। क्यू एंड कैपिटल क्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, बोथ आर फिक्स। अब क्या क्या फिक्स हो गया? ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ये तीनों को हटा करके कैन आई कॉल इट सी? बट दिस सी विल हैव समथिंग awkward. The value of C is going to be, it's going to be negative, right? C is what? It's going to be negative upon R. ये चीज समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? Yes. ठीक है, अब देखो,
if I'm going to increase R, if R increases without changing anything else, potential energy क्या होगा, decrease होगा कि increase होगा? If R decreases, Decrease होगा. potential energy will decrease. ये दोनों चीजें हम रियलाइज कर पा रहे हैं या उल्टा पुल्टा लग रहा है? सर ये तो लेकिन इनवर्सली है ना शायद. हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर? हाँ हाँ. सर वाइस. सर तो आर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा ना. हम लोग जनरली अगर सोचेंगे तो ऐसा ही होगा, बट वो तब होता है जब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेंगे. एक पॉजिटिव एक निगेटिव है. मान लो ये C की वैल्यू -20 है, ठीक है, और हम 4 यूनिट डिस्टेंस पर हैं, तो हमारा एनर्जी क्या होगा, -5. 4 के बदले हम 10 पे चले जाते हैं, ठीक है, दूर चले गए, राइट. 4 के बदले 10 डिस्टेंस पर चले गए, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, -2 हो गई. नाउ विच वन इज ग्रेटर, -2 और -5? -2. तो हम जब दूर गए तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई. Are we हाँ, getting this point? Yes sir. So basically negative positive system जब increase कर रहा, sorry, negative and positive charges जब interact कर रहे होते हैं, तो जितना हम separate करेंगे उन दोनों को, the energy is going to increase. Energy of the system will increase. और जितना close लाएंगे उनको, what will happen? Energy of the system will decrease. Right? Yes sir. ये point समझ में आ सर गया? ऐसे तो C will be inversely proportional ना, अगर वो नेगेटिव है तो. C क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? C तो कांस्टेंट है ना. दोनों Q का वैल्यू फिक्स्ड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है, तो C की वैल्यू तो फिक्स्ड ही रहेगी ना. वेरी तो सिर्फ R कर रहा है और उसकी सर नहीं, वजह अगर से कोई P कर रहा है. एग्जांपल के लिए अगर कोई दूसरा वेरिएबल है, मतलब जो डिपेंडेंट है, और वो अगर मतलब ये सिस्टम नेगेटिव है सर, तो फिर और अगर वो न्यूमरेटर में, तो फिर सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता ना. किसके? पोटेंशियल एनर्जी से. हाँ, अगर एग्जांपल हम कहीं, हाँ समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो. अगर यहाँ पर y कोई वेरिएबल हो और x by कुछ C रखा हो और x जो है वो निगेटिव है, मान लो, यही बोल रहे हो ना, तो सर ये इनवर्सली रहेगा, ठीक है. मतलब इनवर्सली होने का मतलब ये नहीं है कि ये 1/r वाला ही रिलेशनशिप रहे. इसका मतलब ये भी है, यहाँ पर इनवर्सली का मतलब ये है, if y will increase, sorry, if x will increase, y will decrease, और x अगर डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, ठीक है. ट्रू, I accepted your point. However, this point, हाँ बोलो ना. This सर ये point नेगेटिव क्या लिखा था आपने कहाँ पे? C के बाजू में? नहीं, C is going to be negative, ये सिर्फ लिखा है मैंने, ठीक है. अब वो भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे. Now you guys have understood, so I can directly tell you on the basis of this only. ये सारी चीजें कांस्टेंट है एंड ये निगेटिव है, ठीक है. तो इसको अगर मैं R से डिवाइड करता हूँ, तो R को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, P की वैल्यू, यानी ये चीज को डिवाइड करने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बचेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना. नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से एग्जांपल, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू -40. और माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये निगेटिव है
और ये पॉजिटिव है। Am I making sense? And we are supposing it. Suppose this is true. ठीक है, तो अब R से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल सिंपली गेट डिवाइडेड बाय R। R को इंक्रीज करेंगे, R को एक बार लेते हैं 4 यूनिट्स और दूसरी बार लेते हैं 10 यूनिट्स। 4 यूनिट लेंगे तो ये एंटायर चीज क्या हो जाएगा, -40/R क्या हो जाएगा, दिस विल सिंपली बी इक्वल टू -10। और 10 यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, -40/10, that is -4. Now which one is greater, -10 or -4? Obviously -4 is greater, मतलब R बड़ा है तो ये डिवीजन का रेशियो, डिवीजन जो है ये भी बड़ा है, फाइनल रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज लार्जर, और जब डिस्टेंस छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्मॉलर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो 40/R क्या होता, नॉर्मल 10 होता, और बाई 10 करते तो नॉर्मल 4 होता, और 10 से छोटा है 4, तो तब इनवर्स रिलेशनशिप जो है, दैट इज रेडियस इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, दैट वुड हैव बीन द रिलेशनशिप। बट अभी क्या है, इट्स अपोजिटली चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जितना दूर रहेंगे उतना उनका इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा रहेगा, और वो जितना क्लोज आएंगे इंटरेक्शन एनर्जी उतना ही कम होता चला जाएगा, राइट? ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कम होना, ये कहां से हो रहा है कम, या ये कम होने के पीछे रीजन क्या है, द एनर्जी विच इज getting decreased, the energy of the system is getting decreased, will reduce or decrease, therefore electron will start moving closer to the nucleus. Is it okay? The next statement gets verified through this explanation, and now the final point is, the final is thus electron will fall into nucleus and Bohr, Niels Bohr calculated the time taken for an electron fall into the nucleus in 10 to the power -6 seconds, 10 to the power -6 seconds. ठीक है, this means no free atom can exist stable as stable entity. ठीक है, however presence slash detection of noble gases
stable gases which exist as free and stable monatomic system was in contradiction contradiction to Rutherford model. ठीक है, अब आ गया हमारा पॉइंट नंबर 1 डिमेरिट. क्लियर है? सर तो ये पैराग्राफ डीमेरिट है ना? हाँ, क्या क्या? ये पैराग्राफ डीमेरिट है ना? हाँ, यही पैराग्राफ डिमेरिट है. Can you explain the second line? बट ये सिंगल डिमेरिट को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हमको पहले कुछ पता नहीं था. तो पता नहीं था तो इफ आई वुड हैव जस्ट गिवन दिस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेडिएशन रिलीज हो रहा है और फिर energy of the system is reducing, electron is moving closer to nucleus, and hence it will take this much time to fall down, and that means no atom can exist freely and stable. However, presence of the noble gases is contradiction to Rutherford model. तो आप लोगों को कुछ भी बीच की चीजें समझ में नहीं आती, सारी चीजें हवा में चली जाती. ठीक है? Now you have sound understanding कि how things are related and how things are happening, which is explaining the failure of Rutherford model. This was one thing. There was another thing also. It was related to this only. ठीक है? It was not something independent. यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करता हुआ, जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ से ये कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करते करते आ करके न्यूक्लियस में गिरेगा. राइट? सर ये ट्रेजेक्टरी टाइप्स होता है ना? ट्रेजेक्टरी तो हर चीज का रहेगा, कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. स्पाइरल होता है. That trajectory is spiral in nature. सर इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं रिस्पेक्ट में या फिर क्लॉकवाइज? ये पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है अथर सामन, sorry, but you will realize why this doubt of yours has no logic. Let me finish this chapter and then we will come back to this point again. कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा. However, it's good. The question is good. Your inquisitiveness is good. I liked it. But ये मॉडल के बाद अगला मॉडल बोर्स मॉडल पढ़ेंगे ना, उसके बाद जो थियरी बताऊंगा मैं, और श्रोडिंजर्स मॉडल में हम लोग ये देखेंगे या हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पार्टिकल की तरह रिवॉल्व करता ही नहीं. एटम के अंदर ये पार्टिकल की तरह रिवॉल्व नहीं करता है. ठीक है ना? तो जब पार्टिकल की तरह ये रिवॉल्व ही नहीं करता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा ना. बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये घूम रहा होता पार्टिकल की तरह
तब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का सेंस बनता ना, मोस्ट एडवांस थ्योरी है, उसमें ये पार्टिकल की तरह बिहेव ही नहीं करता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वेव। हाँ, तो वेव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे, दे आर जस्ट वेव्स, एंड उनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज गिवन इन अ डिफरेंट मैनर। वो थोड़े टाइम क्लॉकवाइज होते हैं, थोड़े टाइम एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। अगर उनके मोशन की बात करूं मैं, तो वो थोड़े टाइम क्लॉकवाइज रहेंगे। हाँ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ही वो बिल्डअप होता है, सारा मैटर वेव है और सारा वेव मैटर है। सो ठीक है, we'll discuss that when it comes. So it is going, the electron is going to follow this kind of a continuous spiral path to fall into the nucleus, ठीक है। That means the energy radiated by the falling electron is going to be continuous in nature, ठीक है। ये अगला पॉइंट ऑफ फेलियर लिखते हैं। The electron while falling into the nucleus और इसके साथ ना एक और छोटी सी चीज लिख दो, ऐसे करके या कहीं पर भी हाईलाइट करके, the stability of atom was not well explained. Stability of free atoms was not explained. That was the real failure, ठीक है। मेरे का क्लास में लेकिन कोई भी पहन के बैठता है। हम लोग आपका न्यू टी शर्ट बाय करने जाएंगे। सर जो इलेक्ट्रॉन फॉल होता है न्यूक्लियस में, वो सर इट इज मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरे को ऐसे ही डाउट है कि वो जो सैटेलाइट ऐसे गिरता है उसका सब की होने के बाद सर फिर वो अर्थ में गिरता है, वैसे ही सर कुछ फॉल होता है क्या? नहीं, वैसा फॉल नहीं होता है। वहां पे जो फॉल होता है ना, सैटेलाइट वगैरह को, सैटेलाइट फॉल कहाँ करता है? सैटेलाइट को फॉल करते हुए और बाइटिंग सैटेलाइट को कभी फॉल करते हुए सुने हो? सर वो मीर गिरा था ना कहाँ? 1980s में सर। चाइना कहीं पे तो
जो डेब्रिस बन के पूरा गिर गया समंदर में, तो गिरता क्यों नहीं है? नहीं गिरता नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन फेलियर्स, ठीक है। वैसे वो स्पेस में ही डिसमेंटल होके रह जाता है। नहीं डिसमेंटल होके रहता नहीं है, इट कीप्स ऑन ऑर्बिटिंग until unless something else, कुछ और बाहर से फ्लाई करता हुआ आ रहा हो, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रहा है ना, इट विल कीप रिवॉल्विंग टिल द इनफाइनाइट टाइम। हाँ, इट विल कीप रिवॉल्विंग थ्रू आउट विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। इट इज ओनली व्हेन अगर कोई बाहर से आती हुई छोटी मोटी चीज भी उनके साथ इंटरेक्ट कर लेती है ना, उस पर किसी और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, तभी इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो फिर ये अर्थ की तरफ फॉल डाउन करना चालू होगा। अदरवाइज इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग इस चीज को पढ़ोगे, स्लोली एंड स्लोली फिजिक्स के चैप्टर्स में ये सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो सैटेलाइट्स का फॉल डाउन जैसे एक दो इंसिडेंसेस हम लोग जनरली देखते रहते हैं या सुनते रहते हैं, उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। पहला ये होता है that satellite might not be at a very high altitude, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर जैसे जनरली एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक ऊपर रहता है, ठीक है, काफी थिन, बट 80 किलोमीटर तक उसका है एक्सपेंशन मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब अगर कोई सैटेलाइट का एपोगी एंड पेरिगी, दो चीज होता है, एपोगी नियरेस्ट डिस्टेंस, पेरिगी नियरेस्ट डिस्टेंस, एपोगी फारदेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट डिस्टेंस मान लो कहीं पर 80 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, और सैटेलाइट की एक्सटर्नल बॉडी में कोई डैमेज आ गया किसी रीजन से, वियर एंड टियर की वजह से, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से उसमें बर्निंग चालू हो गई, ठीक है, तो डेब्रिस बन करके वो गिर जाएगा। तब फिर एनर्जी और ब्लास्ट वगैरह हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल बाहर जाएंगे, कुछ पार्टिकल अंदर की तरफ आएंगे, इसमें की कुछ चीजें अंदर घूमते हुए आ जाएंगी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो ये हमेशा घूमता रहेगा, या तो कोई एक्सटर्नल एंटिटी आकर के इसको हिट करे और इसके मोशन के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करे, टुवर्ड्स अर्थ करे, तब ये खुद से गिरेगा, या फिर इस तरह का कोई एक्सप्लोजन हो इन रीजन की वजह से, और इसका कुछ फ्रैगमेंट्स अर्थ की तरफ आए और कुछ फ्रैगमेंट्स बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है ना। दीज आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज जबकि वो गिरेगा, ठीक है। बोर ने जो बताया था, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल फॉल, it was a what should I say, that is a general rule. The Bohr said that if the model of atom of Rutherford is considered as the real model, okay, then the norm will be what? The electrons will be falling down into the nucleus every now and then, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअली मल्टीपल एनर्जीज के बदले ना मल्टीपल वेवलेंथ्स लिख लेते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ्स। Good morning, teacher. Good morning. However, In my class. Yes. Any photos in my class? और यहाँ पर एक वर्ड मैं और भी ऐड कर रहा हूँ, छोटा सा, इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। ये चीज आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा।
So today we have Shania. And Shania turns in. Shania is going to take a prayer today, and Hassan is going to help you show what today has been. Okay? And news of the day, I'm sure you all, whoever started this today is ready. Whoever started this today is ready with the news of the day. Shania is not here today. Shania will come. She's come back. So today is what 14. Today Shania is going to see the news of the day. So let's not let Shania to say the prayer. So these were two important drawbacks or failures of रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है. अच्छा, मेरिट्स में एक चीज ये भी आता है, मतलब तो लिखाना भूल गया मैं. न्यूक्लियस का इन्वेंशन जो था, न्यूक्लियस का एक सेपरेट एंटिटी इनसाइड एटम बन के एग्जिस्ट करना, दैट वाज वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द मॉडल. ठीक है. केमिकल रिएक्शन वगैरह जो भी था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो था वो भी एक मेरिट था. तो दैट वी कैन जस्ट पॉइंट आउट. डिस्कवरी That's all about Rutherford model. ठीक है. We'll stop here at this point. After the break, I'll start discussing 2-3 things which is not very much directly related to it, but its knowledge is very much related to this chapter. I'll start talking about waves, spectrum, and quantization of energy of waves, which is a mandatory and ingredient, important ingredient of Bohr's theory. ठीक है. और फिर उसके बाद बोर्स थ्योरी में हम लोग जाते हैं या जाएंगे. सो अभी के टाइम पर इसके बाद जब नेक्स्ट चालू करूंगा मैं, so I'll be talking about waves and their properties. Sir, please will you share the Singh algebra PDF? अरे हाँ, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ. एक्चुअली मैंने